Hi, everybody. Welcome to Success Series. This is your educator Shrishti, and we are going to continue with your Class 8 Polity series, whereby we are going to do Chapter 6. What does Chapter 6 talk about? It is a very, very interesting and an informative chapter that talks about your criminal justice system. जैसा कि आप सब जानते हो, इसके पहले हमने जुडिशरी से इंट्रोडक्शन ली थी. हाउ डज अ जुडिशरी फंक्शन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी. तो इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि एक जस्टिस सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड एंड हाउ डू वी गो अबाउट इट. व्हाट आर सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दैट वी हैव विद रिगार्ड टू access to justice. So all these things I'll be decoding through the course of this chapter. Everybody stay connected, and if you have any queries you can put it in the comment box and we will cater to that. On that note, we'll move forward, everyone. All right, before we move forward, I request you all to please follow the Success CD family on Facebook, Instagram, Twitter. These are some of the places where you can follow us to get all the more details about various other subjects. And if you are watching us on YouTube, which is a 1 million family now, so let's extend it further. Please hit on the bell icon ताकि आपको सारे updates मिलते रहें and you are notified of them as quickly as they come about. So do not forget to hit on the like button. Also, before proceeding forward, what I would like to mention is that we have a lot of free content for the class 10 students. So you can please visit our website and also follow us on various channels so that you can receive all these updates. All this material is downloadable and you can access it and prepare for your board examinations completely free of cost. So please go and have a look at it, and if it is of help to you, do make the maximum utilization. On that note, coming back to the chapter, we are going to be introduced to justice. तो judiciary system क्या है वो मैंने आपको बता दिया था in the previous class. It is basically one of the organs of democracy. Will you all agree with me or not? One of the organs of democracy is judiciary. Why? The other two organs are legislature and executive. जुडिशरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज जस्टिस इज समथिंग दैट हेल्प्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. कभी भी कुछ भी दो लोगों में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक जजमेंट देना बहुत ही यूजफुल होता है. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है. एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे एक क्लास का. सपोज देर इज़ अ फाइट बिटवीन टू चिल्ड्रन. द मॉनिटर, द टीचर और द हायर अथॉरिटीज, दे मस्ट इंटरवीन एंड दे मस्ट रेस्ट द केस सो दैट ऐसा नहीं हो कि वो बहुत एस्केलेट हो जाए. अब वो किस तरीके से किया जाएगा दैट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द केस दैट इज इन्वॉल्व्ड, कि किस तरीके की फाइट हुई है, किस वजह से हुई है, what have both the parties or both the students done with regard to it. उसके बेसिस पे एक जजमेंट लिया जाता है. सिमिलरली द कंट्री इज़ अ ह्यूज कंट्री, सो यहाँ पे भी जस्टिस इसी तरीके से मिलती है बाई relying on certain kind of laws. So when we see someone कि वो लोग वायलेट कर रहे हैं या फिर लॉ या कानून को तोड़ रहे हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग के दिमाग में सबसे पहले आता है लेट्स कॉल दी पुलिस अथॉरिटीज, राइट? बिकॉज दे आर द वन इन चार्ज टू मेंटेन डेकोरम, लॉ एंड ऑर्डर इन अ गिवन एरिया. हर एरिया में कोई एक थाना होता है वेर यू कैन रिपोर्ट इफ देर हैज़ बीन एनी मिस हैपनिंग, एंड दिस इज ऑल ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग द लॉज इन प्लेस. अब जो ये रोल होता है पुलिस का, क्योंकि ये लोग आ करके लोगों को अरेस्ट कर जाते हैं, सो वी व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट पुलिस एंड जुडिशरी इज वन एंड द सेम थिंग. बट यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं बिकॉज police is just involved in finding the crimes, reporting it, but otherwise it is the judge, it is the justice system that will bring a judgment based on what the case is, right? So we don't need to get confused कि police decide करती है कि कोई इंसान guilty है या नहीं. This is not at all true. So first, the chapter that is trying to tell you is trying to introduce you to the concept of justice, कि हम लोग inform police को करते हैं, but it is not the police who come and who give the judgment. Their duty is to take down the facts of the case, and उसके बाद काफ़ी procedures होती हैं, and finally जो judiciary system है वो आ जाती है पिक्चर में, and from there the justice is meted out. So I hope everything is clear till here.
आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ. अब ये कोर्ट ऑफ लॉ 3 स्ट्रक्चर्स में है इंडिया में. यू ऑलरेडी नो ऑफ इट. द हाइएस्ट वन इज द सुप्रीम कोर्ट. द लोअर दैट इज इन द स्टेट्स इज हाई कोर्ट, ये हमने पढ़ा है. एंड देन वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. बेस्ड ऑन द एरियाज एंड द नेचर ऑफ द क्राइम्स यू कैन अप्रोच एनी ऑफ दीज. ओके, सो पर्सन अरेस्ट होते हैं किनके द्वारा? पुलिस के द्वारा. जज नहीं आते हैं, जुडिशरी सिस्टम नहीं आती है किसी को कंप्लेंट्स फाइल करने के लिए या फिर अरेस्ट करने के लिए. ये सारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है पुलिस. लेकिन जब फाइनली एक जजमेंट लेना होता है आफ्टर हियरिंग द केस, अभी तो आपने बस एक केस रजिस्टर किया है. इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन कि किसी ने आपके अगेंस्ट सही केस रजिस्टर किया है या नहीं. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अरेस्ट हो जाते हैं बट दे आर नॉट गिल्टी. सो दिस इज डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड दिस इज व्हाट इज द वेरी एसेंस ऑफ दिस चैप्टर. कि हम लोग को जब ये मालूम पता चल जाएगा कि कहाँ से जस्टिस मिलती है तो वी विल फॉलो दैट प्रोसीजर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, सो दैट इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग वी आर अवेयर कि कैसे क्या करना है. इसीलिए चैप्टर कहता है देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेसेस as well as the role that different persons should play within the criminal justice system, it is crucial. Crucial मतलब बहुत important. अगर हमको रोल नहीं पता रहेगा तो हम तो दिमाग में यही सोचेंगे कि सब कुछ पुलिस के हाथ में है, but that is not how it is, right? Once we are aware कि इस तरीके से जुडिशरी काम करती है, then we will know कि कभी भी कुछ होता है, then what is the process to be followed. So if ever the occasion should arise, you are aware कि आपको किन processes को follow करना है ताकि आपको या आपके किसी इंसान को जस्टिस मिल सके. दैट मीन्स इफ यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग यू शुड बी एबल टू हैव स्पीडी जस्टिस एंड दैट विल ओनली कम व्हेन यू नो द प्रोसेस. कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? देखिए, सबसे पहला होता है लॉ एनफोर्समेंट. लॉ कौन एनफोर्स करती है? पुलिस एंड पेट्रोलिंग कम्युनिटीज़, क्योंकि इनको ये अथॉरिटी दी जाती है दैट इन एनी गिवन एरिया इफ देर इज़ एनी काइंड ऑफ क्राइम या फिर इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट्स दैट इज़ नॉट राइट, तो ये इन्वेस्टिगेट करना, इन केसेस को रजिस्टर करना, दिस इज़ ऑल द ड्यूटी ऑफ अ पुलिस एंड द पुलिस स्टेशन. देन वी हैव द कोर्ट सिस्टम. अब इन्होंने तो कोर्ट्स पुलिस ने तो केस रजिस्टर कर लिए, बट नाउ हु विल सी बोथ द पार्ट्स ऑफ इट? सुनेगा कौन? तो वहाँ पे हमारे कोर्ट सिस्टम पिक्चर में आ जाती है. और उसके बाद करेक्शन सिस्टम. अब मान लो किसी को गिल्टी होल्ड किया गया, सपोज कोर्ट सिस्टम तक पहुंच गए और कोर्ट ने, जज ने ऑर्डर दे दी कि भाई सो एंड सो पर्सन इज चार्ज्ड विद दिस एंड दिस क्राइम. सो बेस्ड ऑन दैट अगर वहाँ पे है कि 7 years इम्प्रिजनमेंट, तो वो आपका हो जाता है करेक्शन सिस्टम. दैट मीन्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट. इन तीनों चीज़ों से, ये कॉम्पोनेंट्स हैं, इन 3 चीज़ों से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इट मूव्स फॉरवर्ड. According to the Constitution, every individual charged of a crime is to be given a fair trial. अब जब हम लोग बात करते हैं जजमेंट की तो ऑब्वियसली हमें ये दिमाग में रखना होगा कि जुडिशरी को हम लोग तभी अप्रोच करेंगे जब कोई मिस हैपनिंग हो रही हो या फिर कोई एक केस हो रहा हो, राइट? सो इस रिगार्ड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जब भी ऐसा कुछ हो एंड वी आर अप्रोचिंग द जुडिशरी, तो अगर हम गिल्टी हो या नहीं हो, इसके पहले हमें क्या मिलना चाहिए? वी शुड हैव द राइट टू फेयर ट्रायल. व्हाट इज दिस फेयर ट्रायल? आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू थ्रू द कोर्स ऑफ दिस लेसन. लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है? यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड फेयर ट्रायल. व्हाट इज द अदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर? कि ये राइट टू फेयर ट्रायल सारे इंडिविजुअल्स को मिलता है. ऑल इंडिविजुअल्स गेट दिस राइट. एंड कौन देता है ये राइट हमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. सो अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर राइट दे रही है सारे इंडिविजुअल्स को, दैट मीन्स इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? एज आई टोल्ड यू, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. Since this chapter talks about components of criminal justice system and understanding everything about it, तो अब हम बात करेंगे role of different individuals. तो जैसा हमने fair trial देखा, so here I have asked you, do you know what it means to get a fair trial? If I ask you what is the importance of fair trial, yeah, what does it mean? When can I say that yes, so and so person has had a fair trial? तो क्या आप समझ पाओगे? So we will be learning that through this chapter. Have you heard of an FIR? बहुत बार आप सुनते होगे. If you're a child, you must have heard your parents, you must have heard someone on the streets कि please FIR lodge कर दीजिए. Just in case ऐसा कुछ हुआ है, FIR lodge कर दीजिए. We've seen it in the movies, we've seen it in the TV series, right? Many a times discussion is made about it. So what exactly is this FIR? Where do we file it? When do we file it?
ओके, एंड हाउ कैन वी फाइल इट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी वंस वी टॉक अबाउट FIR इन दी अपकमिंग स्लाइड्स. डू यू नो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज? अब यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट मेंशन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का. तो ये नेम कहाँ से आया, कौन है ये, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इनका क्या रिलेशन है? सो ऑल दिस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ योर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. दैट मीन्स जब भी कोई क्राइम होती है तो उसके लिए जस्टिस मिलने के लिए हमें कौन सा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है. बेसिकली दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. सो वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. So let's move forward and see, are there any constitutional provisions for justice? Yes, definitely. In the fifth chapter, when we were speaking about judiciary, I had told you that all human beings, all citizens of India have the right to justice. Okay? That means everybody can approach the court. And law is equal for everybody. हमने क्या बात की थी? Rule of law. That means even if you are a powerful person, if you're a politician, if you're a government servant, you will still be under the law. The law will be equal for everybody. इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि सबको जस्टिस मिल सके. Mishappenings can happen with anybody, right? So if it is a poor person, if they are suffering, can they not have justice? Can they be denied justice? So that is not the case. According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right. कौन सी राइट? फंडामेंटल राइट. कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 22 से. टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर. अब मान लो कल को जाके ए और बी है, ए ने बी के बारे में कंप्लेन कर दिया that B has stolen something from me or B has murdered so and so person. Does B have the right to represent himself? या फिर A की बोली पे B को अरेस्ट कर लिया जाएगा and B को मौका नहीं दिया जाएगा? ये क्या ऐसा कह सकते हैं कि no, you've committed a big crime and we will not hear your side of the case? No, that can't be the case. Even if B is guilty और ही इज एस्टैब्लिश्ड गिल्टी, पहले आपको उनको एक लॉयर को असाइन करना होगा. यू हैव टू गिव दैट राइट कि ही कैन फाइंड अ लॉयर फॉर हिमसेल्फ एंड डिफेंड हिमसेल्फ अंटिल एंड अनलेस द कोर्ट होल्ड्स हिम गिल्टी, राइट. सो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है ताकि सबके लिए एक इक्वल प्लेइंग फील्ड रहे और कोई भी इस प्रोविजन को जस्टिस के नाम पे मिसयूज करके किसी को भी गलत चीज़ों में नहीं फंसा सके. ऑल राइट, नेक्स्ट आर्टिकल 39A. अब 39A क्या कहता है? इट प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन whom? अपॉन द स्टेट. अब पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि स्टेट हियर डज नॉट मीन एनी सिंगल गवर्नमेंट. स्टेट हियर बेसिकली मीन्स द इंडियन स्टेट और द नेपाल स्टेट, वॉट एवर इट इज़. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टेरिटरी. सो इंडियन स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी है, आपको लॉयर प्रोवाइड करना पड़ेगा एनी ऑफ योर सिटीजन को हु इज़ अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी. सो इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी कॉन्सेप्ट. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज़ बेसिकली जस्टिस इज़ एक्सपेंसिव. हमने लूप होल्स ऑफ जस्टिस, प्रॉब्लम्स ऑफ जस्टिस में देखा था कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, एक्सपेंसिव होती है. सो इस वजह से क्या होता है, कभी कभी जो पुअर लोग हैं वो लोग अपने केस को रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते बिकॉज दे डोंट हैव द मनी टू हायर अ लॉयर. लेकिन उस तरीके में क्या हो जाता है कि इनइक्वालिटी हो जाती है सोसाइटी में. पुअर कैन बिकम द सॉफ्ट टारगेट्स. सो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, बहुत ही एक साधारण तरीका निकाला, स्पेशल तरीका निकाला कि भाई अगर कोई बहुत पुअर है एंड ही इज़ बीइंग चार्ज्ड ऑफ समथिंग, तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि आप उनको कोई गवर्नमेंट लॉयर एंड पीपल हु आर वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर दीजिए ताकि वो उनके केस को रिप्रेजेंट कर सके इन द कोर्ट. एंड सो व्हाट विल हैपन, एक इक्वल फील्ड मिल जाएगी एंड देन द जजमेंट विल बी फेयर. अब मान लो किसी एक को अपनी केस को रिप्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिला. देयर इज़ अ क्लास, टेस्ट्स आर बीइंग हेल्ड, एनुअल एग्जाम्स. There are only 3 students who have been able to come. The rest have not even written the paper. Probably out of sickness, probably out of not having the opportunity to come to school, whatever be it. तो क्या ये जो results आएंगे वो fair रहेंगे? नहीं. 3 people who have attended the exams, उन्हीं में से toppers आ जाएंगे. So the field provided is not fair. But what if out of 10 people, all the 10 are attempting?
then you will be able to make a fair decision when you are evaluating the papers. तो credibility बढ़ जाती है किसी भी results की, किसी भी judgment की, when there is an equal field for everyone. So under Article 39A, this is what is being done. So please remember both these articles, guys. It is very, very important. Coming to this, can a lawyer be appointed at government's expense? तो आप तो समझ ही गए from the previous case, it is yes. और एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ गया है शांति एंड मिसेस शिंदे थेफ्ट केस. व्हाट वाज दिस? बेसिकली मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ. शांति एक डोमेस्टिक मेड थी जो कहाँ काम करती थी? मिसेस शिंदे के घर पे. वन डे मिसेस शिंदे लूजेस सम मनी, या ओके. सो व्हाट शी सेज इज दैट शांति ने, या ज्वेलरी आई सपोज, ओके. सो शी ब्लेम शांति कि शांति आपके अलावा कोई नहीं आता घर, सो इट इज़ यू हु हैज स्टोलन इट. Now this Shanti, she is in trouble because she is a poor lady. She is not able to represent her case and she says, no madam, I have not done it. I have been able to garner something out of my salary. सो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे ये लोग क्या करते हैं? ये लोग शांति और उसके भाई को टॉर्चर करते हैं क्योंकि इनको शांति के पास कुछ इकट्ठा कैश मिल जाता है. बट शांति सेज दैट दिस इज आउट ऑफ द सैलरी, सेविंग्स एंड एट्सेट्रा. बट दे ब्लेम हर कि जो ज्वेलरी थी वो बेच करके आपको ये मिला है, अदरवाइज हाउ डू यू हैव सो मच कैश. दिस इज हाउ दिस फैमिली ट्राइज टू टॉर्चर द पुअर पर्सन एंड शांति इज नॉट एबल टू रिप्रेजेंट हर सेल्फ. सो इस केस में क्या होता है कि इनको लॉयर प्रोवाइड किया जाता है लेटर व्हेन इट इज सीन दैट दिस इज द केस. एंड आफ्टर द एंटायर केस क्या इस्टेब्लिश होता है? ये इस्टेब्लिश होता है दोनों पार्टीज की बात सुनने से. जज ये कहते हैं कि भाई शांति को हम लोग रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट अक्यूज हर बिकॉज कोई भी ऐसा सबूत नहीं है विच इस्टेब्लिशेस द फैक्ट कि शांति ने चोरी की है. So in this way, Shanti is saved from the kind of torture she would have had to undergo if she was not provided an opportunity of being heard. Is it clear? Had she not had a lawyer, तो शायद शांति अपने आप को कभी भी नहीं दिखा सकती ये कि शी इज़ इनोसेंट. लेकिन अब उनको ये चांस मिल गया कि मैं इनोसेंट हूँ एंड समबडी रिप्रेजेंटेड हर केस एंड सो द कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर. सो दिस वाज बेसिकली द केस. दिस इज डन टू एक्सप्लेन टू यू कि इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड इन तरीके से सॉल्व होती हैं. फ्रॉम द एग्जाम्पल हमें क्या समझ आया कि 4 बहुत ही अहम प्लेयर्स हैं कहाँ पे? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. हु आर दे? सबसे पहले तो पुलिस. इनका क्या रोल होता है? इन्होंने केस, जब मिस्टर एंड मिसेस शिंदे ने केस लॉन्च किया, FIR लॉन्च किया. व्हाट इज एन FIR? आई विल टेल यू. तो वो कहाँ पे किया? पुलिस के पास लॉन्च किया. पुलिस ने इसको रजिस्टर किया. दे रजिस्टर्ड द कंप्लेंट. सो फर्स्ट थिंग वाज द पुलिस. दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग एट्सेट्रा. सेकेंड इज पब्लिक प्रोसीजर, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया फैक्ट्स ऑफ द केस. जो भी फैक्ट्स मिले थे शांति से वो इन्होंने रिप्रेजेंट किया कोर्ट में. देन इज डिफेंस लॉयर, जिन्होंने डिफेंड किया दोनों पार्टीज की राइट्स को. एवरीबडी मस्ट हैव हैड देयर ओन लॉयर्स जिन्होंने डिफेंड किया और क्रॉस एग्जामिन किया. एंड देन फोर्थ इज द जज विच इज़ द फाइनल पार्ट. इन्होंने अपनी जजमेंट सुनाई कि भाई मुझे तो केस सुनने के बाद दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन एंड दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू बी डन. सो इन 4 प्रोसेसेस में एक पूरा का पूरा केस मूव किया एंड देन जस्टिस वॉज गिवन. ओके, दिस टाइम जस्टिस वॉज इन फेवर ऑफ शांति इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. रोल ऑफ द पुलिस क्या होती है? अब जब हमने चर्चा की है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है? पुलिस है. अब कुछ भी होता है, अगर मान लो रोड पे कोई एक एक्सीडेंट होता है, आप किनको कॉल करते हो? यू विल कॉल अ पुलिस नंबर बिकॉज दे विल कम एंड दे विल रजिस्टर द केस. सो पुलिस विल रजिस्टर इट एंड देन दे विल इन्वेस्टिगेट. वो अपनी जांच पड़ताल करेंगे ताकि जो भी कंप्लेंट की गई है कि ऐसा ऐसा क्राइम कमिट हुआ है तो क्या ये सच में हुआ है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एंड मिसेस शिंदे ने पुलिस को बताया. अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी वेदर शांति हैज़ डन इट और नॉट. और ये करते करते इनको ये समझ आया कि कोई एक गैंग है, अ गैंग ऑफ लीडर्स एंड बॉयज़ हु आर इन्वॉल्व्ड इन डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स and they were also related to somebody from Shanti's family. Was it her son? Who was it? Please read onto the example and tell me, okay? Do some things from your end and if there is any problem, reach out. So पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है जो भी कंप्लेंट रजिस्टर किया जाता है. What else?
इस दौरान ये लोग विटनेसेस की स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करते हैं। हमने मूवीज़ वगैरह में देखे हैं, लोग जाते हैं पुलिस स्टेशंस एंड दे गिव देयर स्टेटमेंट्स, दे कलेक्ट एविडेंसेस, क्योंकि अब कोर्ट में आप ऐसे ही तो नहीं चल जाओगे, यू विल हैव टू प्रेजेंट सर्टेन फैक्ट्स। जज मुंह उठा करके जजमेंट तो नहीं दे देंगे जस्ट बिकॉज दे फाइंड समथिंग विच इज़ इन देयर फेवर और वट एवर इट इज़, उस बेसिस से तो नहीं होता है, फैक्ट्स की बेसिस पे होते हैं. So that is why recording statements is also the duty of the police. They can also file a charge sheet in the court based on the suspicion that a person is guilty. अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लगा कि देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये पर्सन को सही चीज़ के लिए अक्यूज़ किया जा रहा है, तो वो एक चार्ज शीट भी फाइल कर सकते हैं इन दी कोर्ट. So that will also establish this in the court that police has found some concrete evidence. So this is the role of the police. Coming to rule of law, ये हम सबको पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं. Everyone is subject to law of the land. Nobody is above law. Is anybody above law? No, nobody is above law. Nobody is above law. This includes the police. तो इसी वजह से क्या है कि पुलिस को भी कुछ लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं. ये प्रोसीजर्स लेड आउट हैं ताकि पुलिस कभी भी अपनी अथॉरिटी को क्या नहीं कर सके, मिसयूज़ नहीं कर सके. पुलिस के हाथ में बहुत पावर दी गई है. दैट डजेंट मीन दैट वट एवर दे फील लाइक डूइंग दे कैन डू दैट. दिस इज वॉट इज मेंट बाई रूल ऑफ लॉ, दैट इवन द पुलिस who is actually trying to enforce law and order is also subject to the law and order of the land. And उनको जो भी करना है उसी के दायरे में करना है, ना कि उसके बाहर. Rule of law has certain things within it: equality under the law, transparency, independent judiciary and accessible legal remedy. Accessible legal remedy क्या होता है कि आपको legal solution जो चाहिए वो accessible होना चाहिए. For example, we saw that article, which article? 22 or 39A. It provides for providing a defense lawyer to somebody who cannot afford one. So that is accessible legal remedy, क्योंकि otherwise वो आप access नहीं कर पाते, but अब आपको वो access दी गई है by the government. So these are some of the things you need to take care of. मूविंग फॉरवर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की है कि पुलिस को सो एंड सो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, at the time of detention and at the time of interrogation. What are these three words? Arrest. कोई कंप्लेंट लिखी गई तो पुलिस आ गए, उस इंसान को लेके चले गए, अरेस्ट कर लिया. सो यहाँ पे इनको कुछ कानून को फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है वेदर दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट. सेकेंड थिंग इज डिटेंशन. अब लोग डिटेंशन में भी रहेंगे जब तक अरेस्टेड हैं. डिटेंशन मतलब पुलिस कस्टडी में. तो इस दौरान भी लोगों को टॉर्चर नहीं किया जा सकता, नथिंग कैन बी डन. एंड इंटरोगेशन, दैट इज जब इन्वेस्टिगेशंस चलेंगी एंड पुलिस इंटेरोगेट करेंगे. आप मूवीज में देखते हो दे आर बीइंग बीटन, ब्लैक एंड ब्लू. दिस आर नॉट अलाउड. दे आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर, दे आर नॉट अलाउड टू बीट, दे आर नॉट अलाउड टू ओपन शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. इसीलिए हम लोग जब भी ये देखते हैं कि जुडिशरी के जजमेंट के बिना अगर पुलिस ने किसी को शूट डाउन कर दिया, that is basically a violation of law on the part of police. That is not allowed. Until and unless the judges do not pass an order, the police cannot take away any human's human rights. So यही सारी guidelines सुप्रीम कोर्ट ने lay down की है, and this is why judiciary becomes very very important. They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offenses. अगर छोटे छोटे offenses है, बड़े बड़े offenses है, कुछ भी है, आप punishment तब तक नहीं दे सकते हो जब तक somebody has been charged guilty. इसीलिए हम लोग कहते हैं कभी कभी क्या होता है, फेक एनकाउंटर्स हो जाते हैं. अभी देखा था हमने कुछ दिन पहले, राइट? ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जब पुलिस ऐसा शो करते हैं दैट समबडी इज ट्राइंग टू रन अवे, इसीलिए हमने शूट डाउन कर दिया, बट वहाँ पे जजमेंट आई नहीं होती है और फिर भी ये लोग लॉ को अपने हैंड्स में लेके अपनी पावर को मिसयूज़ कर लेते हैं. बट इज़ दिस अलाउड? नो, दिस इज़ नॉट अलाउड. पुलिस हैज़ टू मेंटेन सर्टेन काइंड ऑफ डिग्निटी एंड इट हैज़ टू कीप द ह्यूमन राइट्स इंटैक्ट ऑफ द prisoners as well, of the people who are even in their detention before being produced to the court. Now I have a question, is it the police who decides whether a person is guilty or not? तो अभी तक मैंने इतना बोला है, अब आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि नहीं, इट इज़ फॉर द कोर्ट टू एस्टैब्लिश. पुलिस क्या करते हैं? रजिस्टर करते हैं कंप्लेंट को, उसके बाद क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, राइट?
ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, अगर लग रहा है कि गिल्टी है तो भाई चार्जशीट प्लेस कर देंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो दिस इज व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस, बट नॉट टू पास जजमेंट. अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है? दिस इज व्हाट इज एन एफआईआर. एफआईआर स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. कोई भी थेफ्ट हो गई तो सबसे पहले आपको उसकी एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहाँ दोगे? जहाँ पे वो थेफ्ट हुई है उसी के आसपास जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. इसके बाद ही पुलिस कुछ लीगल एक्शन ले सकती है. इट कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग. जब तक आप एफआईआर लॉन्च नहीं करोगे तब तक पुलिस के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है दैट यू वांट सम सीरियस इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम. सो फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज टू लॉन्च एन एफआईआर. एफआईआर में नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स ऑफ द कंप्लेनेंट, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं. एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जिसमें पुलिस एक एफआईआर को रजिस्टर करती है और इसे साइन करता है कंप्लेन करने वाला. कंप्लेन करने वाले के पास लीगल राइट होती है कि आप मुझे एक फ्री कॉपी दे दीजिए एफआईआर की, सो दैट पुलिस कभी भी चेंजेस नहीं कर सके. बहुत बार क्या होता है कि पुलिस में बी करप्ट. दिस इज नॉट राइट टू से, बट इट माइट सो हैपन दैट पुलिस इज मिसयूजिंग देयर अथॉरिटी. तो आपने कुछ और बताया उन्हें, बट उन्होंने एफआईआर में दे हैव टेकन डाउन सम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. सो व्हेन यू हैव अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर तो वो लोग ये सारी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. एंड देन यू विल बी मोर वेल अवेयर एंड यू कैन टेल देम, यू कैन पॉइंट आउट दैट दिस आर द डिस्क्रिपेंसीज. सो द पुलिस कैनॉट एक्ट स्मार्ट एंड ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. चाहे किसी ने उन्हें ब्राइब कर दिया हो, चाहे वो खुद ही किसी केस के अगेंस्ट हो, वट एवर बी द रीजन. Okay, so that is all about the police. Coming to Article 22 again. Article 22 में हमने देखा था it was about providing justice, right? So Article 22 of the Constitution as well as the laws that are related to criminal law, ये एक गारंटी देते हैं. किसको गारंटी देते हैं? अरेस्टेड पर्सन को, कि उनके पास कुछ सारी फंडामेंटल राइट्स इंटैक्ट रहेंगी. व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? कि इवन इफ यू आर बीइंग अरेस्टेड, you have the right to be informed at the time of arrest of the offense for which your person is being arrested. आज कोई आता है मुझे अरेस्ट करने के लिए, पुलिस आई कि मैडम आपके लिए कोई कंप्लेंट आई है एंड वी आर अरेस्टिंग यू. what is my right? My right is to know for what offense I am being arrested. So this is one of the rights that is guaranteed by the Constitution of India. The right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest. So यहाँ पे सेकेंड चीज़ क्या बोली जा रही है? अरेस्ट तो आपने कर लिया, मुझे बता दिया मैडम दिस एंड दिस इज द ऑफेंस दैट यू आर चार्ज्ड विद, बट व्हाट इफ आई एम नॉट गिल्टी? व्हाट इफ टुमारो आई एम stuck in the police station or the jail or whatever it is, and tomorrow, day after tomorrow, 3-4 दिन पास हो रहे, but there is nobody to take me somewhere. There is nobody to establish that I have not committed this act. So that will be violation of my right. So इसीलिए it is compulsory कि 24 घंटे के अंदर अंदर जब से आपको अरेस्ट किया गया है, फ्रॉम देयर 24 आवर्स यू हैव टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ लोकल मैजिस्ट्रेट, ताकि आपके केस की हियरिंग स्टार्ट कर सकें. द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी. जब आपको अरेस्ट किया जा रहा हो या आप कस्टडी में हो ऑलरेडी, you can't be ill treated, you can't be demeaned. Okay, your rights have to be kept intact. आपको टॉर्चर नहीं किया जा सकता unnecessarily or necessarily. Nothing can be inflicted upon you which is in violation of the human rights. So these are some of the rights that are guaranteed by Article 22. Confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused. अगर पुलिस कस्टडी में हम लोग कुछ कन्फेस कर रहे हैं तो वो एक एविडेंस के तौर पे काम नहीं आएगा अगेंस्ट द accused. A boy under 15 years and a woman cannot be called to the police station only for questioning. ये किस लिए किया गया है? सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए, कि पुलिस के नाम पे कुछ ऐसा नहीं हो कि दिस स्मॉल चिल्ड्रन एंड दिस वुमेन दे आर फेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सो एज अ सेफ्टी टूल दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड. It can always be asked to you, give some of the provisions under Article 22 that need to be followed, which also help ensure that judiciary is easily accessible and the fundamental rights are maintained. तो आप इन 5 points में से कुछ भी लिख सकते हो.
कमिंग टू डी के बासु गाइडलाइंस, व्हाट आर डी के बासु गाइडलाइंस? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोसीजर्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी है दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज, पावरफुल एजेंसीज need to follow when they are arresting somebody, detaining somebody or interrogating somebody. अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन के समय पे पुलिस cannot just do whatever it feels like. So these are a set of guidelines that have been given by Supreme Court, and these are what is known as DK Basu guidelines. So it can always be asked, DK Basu guidelines heard of are with regard to what? Police brutality, some other things, so it will always be related to police and justice and the human rights. अब फर्स्ट रोल हमने देख लिया था पुलिस का, उन्होंने अपना काम कर दिया. सेकंड स्टेज पे अब हम लोग चल जाएंगे जहाँ पे हम लोग मिलेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर से. हु इज ही? अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग. What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victims but against the society. Civil law और criminal law का difference हमने पढ़ा है, right? Civil law is more of personal law. इसीलिए यहाँ पे jail and this kind of things are not there. But under criminal law, what is the thing? Under criminal law, it is the public that is affected. सो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आना पड़ता है. इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु विल रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. जो भी इंटरेस्ट है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा. Role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. What is a charge sheet? कि so and so person is thought to be guilty. That is the charge sheet against the accused person. पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेंगे? उस केस को रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे आफ्टर द पुलिस इज डन विद इट्स रोल. नाउ कम्स द रोल ऑफ द जज. सो जज, हु इज द जज? जज इज लाइक एन अंपायर. जैसे कि रेफरी होते हैं एक फुटबॉल मैच में, सब कुछ चल रहा है, गेम मस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बट द रेफरी विल डिसाइड कि कोई फाउल हुआ है क्या, कोई पेनल्टी लगनी है क्या, कोई येलो कार्ड दिखाना है क्या. सेम विद द अंपायर. इफ द अंपायर डजंट सक्सीड, वी ऑल्सो हैव गो टू द अदर अंपायर, राइट? So the trial is conducted impartially, the match is conducted in a fair manner and in an open field, here in an open court. जज क्या करेंगे? सारे विटनेसेस को सुनते हैं जिनके स्टेटमेंट्स पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन. कोई भी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी जज देखते हैं. ये सारी चीज़ें वो सुनते हैं और फिर वो अपनी जजमेंट देते हैं. इस बेसिस पे वो ये डिसाइड करते हैं, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे, कि क्या जो पर्सन को अक्यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या वो सच में गिल्टी है ऑफ दैट क्राइम या फिर वो इनोसेंट है और फॉल्स चार्जेस में फ्रेम किए जा रहे हैं. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि अगर आप कोर्ट में प्रेजेंट हो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड समथिंग. नहीं, कभी कभी लोग आपके अगेंस्ट फॉल्स चार्जेस भी प्रेस कर देते हैं. सो हियर द जज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जज की एक जजमेंट से ईदर यू विल स्पेंड योर लाइफ इंडोर्स इवन इफ यू आर नॉट गिल्टी, एंड इफ अगर कोई गिल्टी है उनको वापस छोड़ दिया तो वो भी एक समस्या है फॉर द सोसाइटी, बिकॉज ही कैन अगेन कॉज हार्म. सो द रोल ऑफ द जज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द जुडिशरी सिस्टम. फेयर ट्रायल. व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल? कि जब ट्रायल मिल रही है, ओके, तब आपको आर्टिकल 21 में ये कहा गया है, आर्टिकल 21 आपका अपहेल्ड होता है. व्हाट इज आर्टिकल 21? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. Right to life and personal liberty. Is it or is it not? Is it or is it not? If you don't know, please check this, okay? Please learn this. It is an important right. It is significant. मतलब it is important that the judge decides the matter only on the basis of the evidence before the court. ना कि because he is biased towards some party. या फिर ना कि because he is pressurized कि प्लीज़ आप इनके फेवर में जजमेंट दो. ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. जज की क्वालिटीज़ है इम्पार्शियल होना, करेक्ट होना एंड एविडेंसेस के तौर पे काम करना, ना कि इमोशंस के. सो ऑल ऑफ दिस विल इंश्योर दैट अ फेयर ट्रायल इज़ रिसीव्ड बाय समबडी. एग्जाम्पल ऑफ अ फेयर ट्रायल. तो अगर हम लोग शांति और शिंदे के केस में ही देख लें, शांति को एक चार्जशीट दी गई थी, अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर. शांति को ये कह दिया गया था, ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया था फ्रॉम द पुलिस एंड द प्रोसिक्यूटर्स एंड दैट यू हैव बीन चार्ज्ड गिल्टी. इनको कौन सी ऑफेंस से चार्ज किया गया था? थेफ्ट, चोरी, विच वॉज डिफाइंड एज अ क्राइम, मतलब क्रिमिनल लॉ में आता है ये.
लेकिन उसके बाद ट्रायल किया गया। ट्रायल कहाँ पे हुआ? ओपन कोर्ट में, और पूरी पब्लिक उसे व्यू कर सकती थी, ना कि अंडर प्राइवेट रूम्स। हर ब्रदर सुशील ऑल्सो कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स। ट्रायल किसके प्रेजेंस में हुआ था? इन प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। शांति को किसने डिफेंड किया था? एक उनके लॉयर ने, जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी। एडवोकेट जो रॉय थे उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी क्रॉस एग्जामिन करने को। किनको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है? प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को। दैट मीन्स जिन्होंने अक्यूज किया था, द पार्टी दैट हैज़ अक्यूज्ड कि शांति ने ऐसा कुछ किया है, उनके लॉयर और उनके विटनेसेस को कौन क्रॉस एग्जामिन कर सकता है? शांति के लॉयर। एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस इन शांतिज डिफेंस। इनको ये भी बोला गया था कि अगर आपके शांति के डिफेंस में आपके पास कुछ है, कोई भी सबूत है, तो प्लीज़ उसको पेश कर दीजिए। ऑल्दो द पुलिस फाइल्ड अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति, लेकिन जज ने लास्ट में ये बोला कि नहीं, शांति इज इनोसेंट। गोइंग बाय द फैक्ट्स ऑफ द केस वी कांट सी दैट शांति इज गिल्टी। ओके, it is significant that the judge decided the matter only on the evidence that was presented before the court. जज कोई भी कंक्लूजन पे ऐसे ही नहीं आ गए, ना ही उन्होंने ये बोला पहले शुरू में कि शांति गिल्टी नहीं है, और ना ही ये बोला कि नहीं भाई ये तो मेड है, इसने पैसों के लिए चोरी कर ली होगी। ही केप्ट इट ओपन। ओके, ही केप्ट हिज ऑप्शंस ओपन कि मैं केस सुनूंगा, एंड बेस्ड ऑन द एविडेंसेस आई विल डिसाइड व्हाट इट इज। सो द जज रिमेन्ड इम्पार्शियल, ही डिड नॉट फेवर एनी साइड। एविडेंस के दौरान इनको ये पता चला कि कुछ यंग मैन, वो लोग थीव थे, और ना ही शांति, ना कि शांति। सो फाइनली किनको ये मिल गया, जस्टिस मिल गया, शांति को जस्टिस मिल गई, बिकॉज शी वॉज गिवन द राइट टू अ फेयर ट्रायल। लेकिन यहाँ पे इफ शी वॉज नॉट गिवन द चांस टू रिप्रेजेंट हर केस, if she was not given the opportunity of having a fair trial, what would have happened? Maybe she would have been behind the bars. Maybe she would not have been able to prove her innocence in the court of law. So that is the importance of fair trial. With this, we come to the end of criminal justice system. What are the important processes that are involved? What are the important parties that are involved? क्या क्या कीवर्ड्स हैं, डी के बासु गाइडलाइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहती हैं विद रिगार्ड टू जस्टिस, एवरीथिंग वीव कवर्ड. In the chapter, you have certain important words, that is accused. When you're charging somebody of certain crime, if I tell you that no, you have done this, you have beaten that boy, that means I'm accusing you. It refers to the person who is tried by a court for a crime. यहाँ पे कौन accused था? वो एग्जाम्पल में शांति was the accused. Cognizable क्या होता है? For which the police may arrest a person without the permission of the court. एक होते हैं देखो cognizable offenses, और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल. नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस अपने आप नहीं अरेस्ट कर सकती बिना कोर्ट के परमिशन के, बट कॉग्निजेबल अगर हैं, विच आर मोर सीरियस केसेस, यहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर लेती है इवन विदाउट हैविंग द कोर्ट्स परमिशन. क्रॉस एग्जामिन मतलब आप विटनेस को क्रॉस सवाल पूछोगे, ताकि कोई अगर वो झूठ बोल रहे हैं या कुछ प्रेशराइज किया गया है, सिखाया गया है, तो आप उसकी ट्रूथफुलनेस डिटरमाइन करोगे कि क्या ये जो विटनेस है इनको सच में इनको वही है जो ये बोल रहे हैं, या फिर इनसे बुलवाया जा रहा है, या फिर ही हैज़ बीन पेड फॉर इट, वट एवर इट इज़. सो दैट इज़ द पावर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. इससे क्या होता है? ट्रुथ बाहर आता है, बिकॉज देर आर प्रॉब्लम्स इन द स्टेटमेंट्स दैट विल बी अटर्ड. एंड वॉट इज़ डिटेंशन? कि आप इलीगल कस्टडी में रख रहे हो, पुलिस इलीगल कस्टडी में रख रही है किसी को, या फिर लीगल कस्टडी में रख रही है. प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन. डिटेंशन इज जस्ट कीपिंग समबडी इन कस्टडी. इम्पार्शियल मतलब फेयर रहना, बायस्ड नहीं होना, किसी को फेवर नहीं करना. एट एनी कॉस्ट वट एवर यू हैव टू डू इज टू बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस. ऑफेंस क्या है? एनी थिंग फॉर विच देर इज अ लॉ that defines that this thing is a crime. So if any law defines a particular thing as a crime, then the conduct of that crime would be known as an offense. So these are some of the keywords you have in the chapter. Rest is to be charged of a crime. That means trial judge ने देख लिया. In writing of the offense for which he or she will face trial. मतलब आप किस चीज़ के लिए, किस क्राइम के लिए you are going to face a trial, that will be given to you. विटनेस क्या होता है? somebody who is called in court to present a first hand account कि उनको क्या जानकारी है उस केस के बारे में, किसने देखा था. फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में कोई विटनेस था क्या कि somebody was driving rash या फिर somebody was drunk driving. So this kind of things.
With that, we come to the end of the chapter, guys. I hope it has been clear. Any doubts, please reach out. And in the end, again, please follow us on various profiles like Facebook, Instagram, Twitter. If you have liked this lesson, please lend your support, love, etc. by hitting on the like button. It will mean a lot. Also, leave us your feedback in the comment section. Looking forward to see all of you all in the next lesson. Till then, take care, bye bye, and stay connected.